Describe a conversation topic you were not interested in. Hey guys, this is नवदीप। तो सबसे पहले हम सैम्पल आंसर देखेंगे, फिर मैं उसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी। साथ ही में जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट मुझे लगता है कि शायद आपको उनके मीनिंग ना पता हो तो वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। Now let's begin. I am a fascinating person no matter what topics are discussed around me, like politics, sports, lifestyle of celebrities, fashion, and to name a few. I always participate and enjoy the conversations. Well, exceptions are always there. A couple of months prior, my childhood friends visited me. As I met them after a long time, I had ants in my pants to enjoy few moments with them. That's why I already prepared lunch before they arrived. I still had curiosity for our conversations till we finished our lunch. Whereas, as my television was on, my friends saw an advertisement of a reality show named Big Boss. This show is quite popular and majority of people enjoy watching this show. And my besties are also crazy for its each and every episode. As soon as they saw that advertisement, both of them started discussing about whatever is going on in Big Boss during those days. Now, for me, the problem was that I hate this reality show. I gave my best to switch the topic. Nevertheless, as my friends were on the edge of their seats for next episode, they kept continuing conversations about this topic. I had a strange feeling that time as I met them after a long time and I had keen desire to enjoy our conversations. Actually, they hadn't any fault. It was all about different perspectives. The TV show they loved, I didn't find it informative and amusing. I always make sure that the content I consume should be knowledgeable. For example, if I watch videos of politicians, I learn about public speaking. If I read about sports, I influence myself to do some physical activities. And if I see fashion concerns, I upgrade myself and become flexible to adjust in this new era. Whereas from Big Boss, I think one becomes aggressive. Further, well-known celebrities from different platforms like YouTube, TikTok, comedians of TV shows, popular dancers, popular singers participate in it as contestants. This is the reason that this show gets attention from everyone. Many of my friends, neighbors, family relatives stick to this show. Apart from this, as I don't watch Big Boss, I was unable to participate in conversations with my bosom friends. That time I had no clue that how could I kill my boredom, although I was with my friends. Eventually I end up with this monotonous meeting with my friends which was of 2.5 hours. आई एम अ फैसिनेटिंग पर्सन। फैसिनेटिंग पर्सन मतलब इंटरेस्टिंग पर्सन। अपनी थोड़ी सी तारीफ़ की है मैंने। तो चाहे कोई भी टॉपिक मेरे आसपास डिस्कस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग हो, पॉलिटिक्स हो, किसी सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल के बारे में हो, फैशन के बारे में हो, या फिर कोई भी हो, तो मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती हूँ और बातचीत को इन्जॉय करती हूँ। वेल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर। फिर भी मेरे पास एक कन्वर्सेशन टॉपिक है जिसको मैंने जिसने मुझे बोर कर दिया था और उसके बारे में इस क्यू कार्ड में मैं बात करूँगी। टू नेम अ फ्यू का मीनिंग होता है, जैसे हम बचपन में हमसे पूछा जाता था कि आपकी हॉबीज़ क्या है, तो हम बोलते थे आई लव लिसनिंग म्यूज़िक एंड वॉचिंग टेलीविज़न। पीछे हम एक्सेट्रा लगा देते थे क्योंकि हमारे पास एग्जांपल्स ख़त्म हो जाती थी। तो यहाँ पे मैंने वो काम किया है, एक्सेट्रा नहीं लगाना, टू नेम अ फ्यू उसकी जगह लगा देना है। इसका मीनिंग है मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स है देने को, लेकिन बात को समझाने के लिए ये कुछ 2-4 दी हुई हैं एंड पीछे लगा दिया टू नेम अ फ्यू। तो लगभग 2 महीने पहले मेरी कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स ने मुझे विज़िट किया, मेरे घर पे आई। जैसे कि मैं उन्हें बहुत देर बाद मिल रही थी, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी। आई हैड एंट्स इन माय पैंट्स, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करने के लिए। इसीलिए मैंने लंच पहले ही प्रिपेयर कर लिया, उनके आने के पहले ही मैंने लंच प्रिपेयर कर लिया था। तो कपल ऑफ मंथ्स मतलब कपल ऑफ समथिंग, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। कपल ऑफ वीक, कपल ऑफ थिंग्स मतलब 2, लगभग 2। ठीक है। प्रायर मतलब बैक, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 2 months बैक और 2 months अगो।
हमारे लंच ख़त्म होने तक स्टिल मेरे अंदर सेम क्यूरियोसिटी बनी हुई थी, सेम एक्साइटमेंट बनी हुई थी अपनी बातचीत को लेकर कि मैं उनके साथ बातें करूँगी, जबकि मेरा टेलीविज़न ऑन था। वेयर एज़ जबकि और टेलीविज़न ऑन था, एडवर्टीज़मेंट्स चल रही थी और वहाँ पे बिग बॉस की एक रियलिटी शो है जिसकी एडवर्टीज़मेंट आई और मेरे फ्रेंड्स ने देखी वो। ये शो बिग बॉस काफ़ी पॉपुलर है और बहुत सारे लोग इसे देखना पसंद करते हैं और मेरी बेस्टीज़ जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है इसके हर एक एपिसोड के पीछे। तो एज सुन एज जैसे ही उन्होंने एडवर्टीज़मेंट देखी उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट कर दी कि आजकल जो भी हो रहा था उस टाइम पे ड्यूरिंग दोज डेज़ जो भी हो रहा था उसके ऊपर उन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया। नाउ अब मेरा क्या था कि मुझे ये रियलिटी शो पसंद नहीं था, मुझे नफ़रत थी इसके साथ। फिर मैंने अपना बेस्ट दिया इस टॉपिक को चेंज करने के लिए, मतलब स्विच करने के लिए कि मैं टॉपिक ही चेंज कर दूँ। फिर भी नेवरदलेस मेरी फ्रेंड्स इतनी एक्साइटेड थी कि आगे क्या होगा, वो जैसे हर रोज़ के एपिसोड्स देखती हैं, तो वो तो बातचीत उन्होंने अपनी जारी रखी बिग बॉस के ऊपर। तो मेरे अंदर एक स्ट्रेंज फीलिंग थी कि मैं इतनी देर बाद इनको मिल रही हूँ और क्या इतनी डिज़ायर थी मेरे अंदर, कीन डिज़ायर, मतलब बहुत ही डीप डिज़ायर, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी मैं उनके साथ बातचीत करने को। यहाँ पे आया एक फ्रेज़ है ऑन द एज ऑफ देयर सीट्स। इसका मतलब है मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होना कि हाँ नेक्स्ट क्या होने वाला है उसके प्रति। तो ये फ्रेज़ मुझे बिल्कुल सही लगा यहाँ पे लगाने के लिए। इसका मीनिंग ये है। अभी उनकी कन्वर्सेशन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब इसका इल्ज़ाम एक तरह का मेरे फ्रेंड्स के ऊपर लगा हुआ था, तो वो मैंने हटाना है। एक्चुअली दे हैवंट एनी फॉल्ट, ठीक है, उनकी कोई मिस्टेक नहीं है। बस मेरे और मेरी फ्रेंड्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। पर्सपेक्टिव्स मतलब ओपिनियन, थिंकिंग, ठीक है, सोचने का तरीका हमारा अलग अलग है। जो टीवी शो वो देखना पसंद करती है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। आई डोंट फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव, अम्यूज़िंग मतलब इंटरेस्टिंग, ठीक है। मैं हमेशा ये मेक श्योर करती हूँ, हमेशा ये यकीनी बनाती हूँ कि जो भी मैं देखती हूँ या रीड करती हूँ या सुनती हूँ वो नॉलेजेबल होना चाहिए, ठीक है, फुल ऑफ नॉलेज होना चाहिए। कंटेंट कंज्यूम का मीनिंग यही है। कंज्यूम का मीनिंग वैसे आपको पता होगा ईट होता है, खाना, लेकिन यहाँ पे कुछ और मीनिंग है इसका। कंटेंट कंज्यूम मतलब जो हम रीड करते हैं, देखते हैं सारा दिन मोबाइल फ़ोन पे, चाहे टेलीविज़न पे, चाहे रेडियो पे हम कुछ सुन रहे हैं, तो वो हम कंटेंट अपने अंदर डाल रहे हैं, वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पॉलिटिशियंस की वीडियोस देखती हूँ तो मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखती हूँ, ठीक है। अगर मैं स्पोर्ट्स के बारे में रीड करती हूँ तो मैं अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करने के लिए प्रभावित करती हूँ, इन्फ्लुएंस करती हूँ। एंड इफ़ आई सी फैशन कंसर्न्स तो मैं अपने आप को अपग्रेड करती हूँ और फ्लेक्सिबल बनाती हूँ इस नए एरा में एडजस्ट होने के लिए। अभी यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल वर्ड है, फ्लेक्सिबल वर्ड आपको शायद पता हो, हम फिटनेस के लिए बॉडी के ऊपर यूज़ करते हैं। जो इंसान योगा करे, एक्सरसाइज करे और वो योगा के अलग अलग पोज करते हैं, किसी भी तरह बॉडी को फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ तोड़ सकते हैं, तो उनके लिए यूज़ करते हैं कि बहुत ही फ्लेक्सिबल बॉडी है ना। तो ये इसका मीनिंग इधर नहीं है। फ्लेक्सिबल मतलब फ़ैशन की बात हुई है पहले, तो फ़ैशन में जैसे जो नए ब्रांड्स हो गए, जो भी आजकल चल रहा है मार्केट में नया, चाहे कपड़ों की ओर हो गए, चाहे वैसे भी जो नया चल रहा है आजकल, गैजेट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, तो उसके बारे में सब कुछ मुझे पता चलता है। अगर मैं फ़ैशन की ओर ध्यान देती हूँ तो मैं फ़्लेक्सिबल बनती हूँ, ठीक है। आजकल नए ज़माने के साथ मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती रहती हूँ, अपग्रेड करती रहती हूँ। वेयर एज जबकि बिग बॉस की बात करें तो मुझे लगता है, आई थिंक, कि एक इंसान एग्रेसिव ही बन सकता है, कुछ सीख नहीं सकता इधर से। अभी ये मैंने एक तरह का रीज़न बता दिया कि जिस बारे में वो मेरी फ्रेंड्स बात कर रही थी उसमें मेरा इंटरेस्ट क्यों नहीं था, क्योंकि जिस बारे में वो बात कर रही थी बिग बॉस शो के बारे में, उसमें मेरा इंटरेस्ट इसलिए नहीं था जो मैंने अभी बता दिया। तो ये एक बुलेट पॉइंट का आंसर हो गया है। तो ये थोड़ा सा मैंने और बता दिया है उस शो के बारे में। अगर आप चाहो तो इसे रहने दे सकते हो, मत करो ये वाला पैसेज। अगर नहीं करना है तो कर लो, अपने टाइम पे डिपेंड करता है। आप सारी स्टोरी देख लिया करो और अगर आपके पास टाइम है तो ये जो थोड़ी बहुत बकवास होती है वो चलते रहनी चाहिए, क्योंकि टाइम पूरा करना होता है। खुद कभी भी रुको मत, सिर्फ एग्ज़ामिनर आपको बोले स्टॉप, देन आप स्टॉप हो, ठीक है।
तो इसमें क्या है, फर्दर वेल नोन सेलिब्रिटीज़ फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब हो गया, टिकटॉक, कॉमेडियन शो, डांसर, सिंगर्स, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एज अ कंटेस्टेंट्स, ठीक है। यही रीज़न है कि जो ये शो है सबकी अटेंशन लेता है, सबको अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। मेरे कई फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं या फिर फैमिली रिलेटिव्स हैं, वो भी इसको स्टिक हुए पड़े हैं इसी शो के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब इसके अलावा जैसे कि मैं बिग बॉस नहीं देखती तो मैं बातचीत में पार्टिसिपेट कर नहीं पा रही थी, हालांकि वो मेरी फ्रेंड्स थी, बूजम फ्रेंड्स थी, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स थी। दैट टाइम आई हैड नो क्ल्यू, मतलब आई डिडेंट नो या आई हैड नो आइडिया कि मैं अपनी बॉरीडम को कैसे मारूं। हाउ कुड आई किल माई बॉरीडम ऑल दो आई वॉज विद माई फ्रेंड्स, ऑल दो मतलब हालांकि मैं अपने ही दोस्तों के साथ थी। इवेंचुअली एट द एंड, वैसे इवेंचुअली मैंने हर क्यू कार्ड में यूज़ किया होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर कुछ रेपिटेशंस मेरी हर क्यू कार्ड्स में होती हैं, वो इसलिए होती हैं, आपको ईजिली पता ही होता होगा कि इसका मीनिंग ये है, आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती होंगी। अगर आपको नहीं यूज़ करना होता इसकी जगह फाइनली यूज़ कर सकते हो या फिर एट द एंड बोल सकते हो, ठीक है, अगर आप पक चुके हो। एट द एंड आई एंड अप विद दिस मोनोटोनस मीटिंग। अब देखो, आप अगर बोलोगे एट द एंड आई एंड अप विद दिस, वो एंड वर्ड थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, हालांकि उसमें और मीनिंग है, इस एंड में और मीनिंग है, तो आप खुद को देखना पड़ेगा। मोनोटोनस का मीनिंग है फिर से बोरिंग, ठीक है, मैंने वो मोनोटोनस यूज़ किया है। मोनोटोनस मीटिंग थी मेरे लिए, वो भी 2.5 घंटे की।